جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، قسم خدا کی وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں۔ جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، قسم خدا کی وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں، اور چمک رہی ہے جبینیں تیرے غلاموں کی، چمک رہی ہے جبینیں تیرے فقیروں کی، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں۔ اور خدا کے واسطے اب کھول ان پہ باب عطا، خدا کے واسطے اب کھول ان پہ باب عطا، جو دیر سے تیری چوکھٹ پہ آئے بیٹھے ہیں، جو دیر سے تیری چوکھٹ پہ آئے بیٹھے ہیں۔ اور بطور خاص یہ شعر، یہ ایک ہم ہے کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے، یہ ایک ہم ہیں کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے، وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں، وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں۔ اور نصیر، ہم میں تو اپنوں کی کوئی بات نہیں، نصیر، ہم میں تو اپنوں کی کوئی بات نہیں، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں۔ قسم خدا کی وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں، جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں۔ عزیزان محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض، کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، وہ لوگ رحمان کے بندے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب رحمان کے بندوں سے کوئی جاہل مخاطب ہوتا ہے تو وہ اسے سلام کر کے آگے گزر جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، رب تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں اپنے صالحین بندوں کی صفت بیان کی کہ میرے صالحین جو بندے ہوتے ہیں ان میں تکبر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، وہ ایسی عاجزی انکساری کی زندگی گزارتے ہیں کہ پوری خلق خدا بھی ان کی شیدائی بن جائے، پھر بھی ان کی عاجزی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمہ وقت اسی تصور میں غرق رہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ سیاہ کار اور گناہ گار اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان سے کوئی جاہل، یہاں جاہل سے مراد کیا ہے؟ یہاں وہ نہیں کہ جس کے پاس علم نہیں ہے اور وہ کسی علم کا سوال کرے، کوئی بات پوچھے تو جواب نہیں دیتے، نہیں، بلکہ یہاں ایسے شخص کو اللہ نے جاہل کہا ہے کہ جو ہٹ دھرمی کرتا ہو، جو اپنی بات منوانے کے لیے کسی کے پاس آیا ہو، تو اللہ فرماتا ہے کہ جب ایسے لوگ صوفیاء سے مخاطب ہوتے ہیں، صالحین سے مخاطب ہوتے ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ ایسوں سے بحث کرنا، گفتگو کرنا یہ دانش مندی کا کام نہیں ہے۔ ایسوں سے
बात करना ये अक्लमंदी का काम नहीं है। इसलिए जब कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा हठ धर्म उनके पास आता है तो वो उससे सलाम करके आगे गुजर जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं जितनी देर इससे गुफ्तगू करने में मसरूफ़ रहूँगा, मुझे मालूम है कि इसे बात मेरी माननी नहीं है, तो मैं इसके साथ बात करके, गुफ्तगू करके वक्त को क्यों ज़ाय करूं, बल्कि जो वक्त गुजर रहा है उसे याद इलाही में क्यों ना गुजारा जाए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, कि जब उनसे कोई जाहिल मुखातब होता है तो वो उसे सलाम कह के आगे गुजर जाते हैं, बढ़ जाते हैं, वो उससे बहस में उलझते नहीं हैं। आज मेरे अजीज़ों, हमारे लिए भी ज़रूरी यही है कि हम सूफिया किराम की तालीमात पर अमल करें, उनकी तालीमात को आगे बढ़ाएं, और जो लोग भी उनके ख़िलाफ़ अपनी ग़िलाज़तें बकते हैं, ज़बान से नाज़ेबा कलमात अदा करते हैं, आज हमारे लिए ज़रूरी ये है कि मशरब सूफिया पर अमल करते हुए उनकी बातों की तरफ तवज्जो न दी जाए और खिदमत दीन और तबलीग दीन के फ़राइज़ को अंजाम दिया जाए। आज हम क्यों ये काम नहीं कर पा रहे हैं? उसकी वजह यही है कि जब हम कोई काम करते हैं, कोई नेक काम करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बातें करते हैं, मोहब्बत के पैगाम को आम करते हैं, इत्तेहाद को दर्स देते हैं, तो हर शख्स मुखालफत में खड़ा हो जाता है। और जब हमारी मुखालफत होती है तो हम अपने फ़राइज़ को भूल जाते हैं और उन मुखालिफिन का जवाब देने में लग जाते हैं। जो हमारा असली मकसद होता है वो हमसे पीछे रह जाता है। इसलिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम किसी ऐसे वैसे की ऐरे गैरे की बात पर ध्यान न दें, तवज्जो न दें, बल्कि इस बात की तरफ तवज्जो दें कि अल्लाह ने हमें किस लिए पैदा किया है, हम यहाँ दुनिया में किस लिए आए हैं, और फिर पलट कर हमें अल्लाह के हुजूर जाकर जवाब देना है। हमें दुनिया में रहते हुए उसकी तैयारी करनी। मेरे अजीज़ों, अगर हम सूफिया इकराम के इस तरीक़े को, जो सिफ़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सालिहीन की बयान की है, अगर हम उसे अपनी ज़िंदगी में नाफिज कर लें तो आप खुद देखेंगे कि आप अपने मकसद में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। एक कहावत कही जाती है कि हाथी रास्ते से गुजर रहा हो और कुत्ता जब भौंकता है तो उस गुजरने वाले हाथी पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि हाथी जान रहा है कि ये इस लायक है ही नहीं कि इससे रुक के गुफ्तगू की जाए, इसका जवाब दिया जाए, इसलिए वो कान हिलाते हुए आगे गुजर जाता है। ये कहावत और ये हाथी हमें ये दर्स दे रहा है कि जब तुम्हारे सामने ऐसे मामलात आए तो तुम भी ऐसों की बात पे न तवज्जो दिया करो, क्योंकि उनकी हैसियत उन कुत्तों जैसी है और तुम्हारी हैसियत हाथी की है। अगर तुम रुक कर उनको जवाब दोगे तो ये तुम्हारे शायाने शान नहीं है, बल्कि वो भौंक रहे हैं, उन्हें भौंकने दो और तुम अपना काम करते हुए आगे गुजर जाओ। अल्लाह तुम्हें कामयाबी से हमकिनार कर देगा। लेकिन आज हमसे गलती यही हो रही है कि हम हर बोलने वाले के, हर मुखालफत करने वाले के, हर भौंकने वाले का रुक के जवाब देने की कोशिश करते हैं, और इसी वजह से जो हमारा फर्ज है, जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारा काम है, हम उससे पीछे रह जाते हैं, उससे रुक जाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, आज के दौर में हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हम सूफिया किराम की तालीमात को अपने सामने रखें। कौन सा ऐसा सूफी है, कौन सा ऐसा बुजुर्ग है, उंगली पे गिन के बताएं कि जिसके वक्त के उलमा ने, जो उलमाए सू जिन्हें कहा जाता है, उनकी मुखालफत ना की हो, फतवेबाजियां ना की हो, लेकिन वो इन चक्करों में नहीं पड़ा करते थे। क्यों? क्योंकि अल्लाह का फरमान है, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। इज्जत देना अल्लाह का काम है,
ذلت دینا اللہ کا کام ہے، اس لیے کسی دنیا والے کے عزت دینے سے آپ باعزت نہیں ہو جائیں گے، اور کسی دنیا دار کے ذلیل کہنے سے آپ ذلیل نہیں ہو جائیں گے، بلکہ اللہ جسے چاہے گا عزت دے دے گا، اور اللہ جسے چاہے گا اسے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اور آپ دیکھیں گے ہر زمانے میں صوفیہ کے مقابل جتنے بھی لوگ کھڑے ہوئے، اللہ رب العزت نے انہیں ذلیل کیا ہے، رسوا کیا ہے۔ یہ بات بتاتی ہے کہ صوفیہ کرام وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ ان سے آج سیکھنے کی ضرورت ہے، ان پہ انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن آج ہم بجائے ان سے کچھ سیکھنے کے، ان سے کچھ لینے کے، اپنی اصلاح کرنے کے، ہم اپنے کم علمی سے ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی مخالفت کرنے لگتے ہیں، ان پہ انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں، ان پہ طعن و تشنیع کرنے لگتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تو سرخرو ہو جاتے ہیں، باعزت ہو جاتے ہیں، معزز ہو جاتے ہیں، اور مخالفت کی وجہ سے ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن جایا کرتی۔ میرے عزیزوں، آج لوگ اس خوش فہمی میں پڑ گئے ہیں کہ ہم جسے چاہیں گے عزت دیں گے، ہم جسے چاہیں گے ذلت دیں گے، جبکہ قرآن مقدس لاریب کتاب ارشاد فرما رہی ہے کہ تمہارے عزت و ذلت دینے سے کوئی باعزت اور ذلیل نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اور تاریخ اس بات کی بھی شاہد ہے کہ جن لوگوں کو صوفیہ کرام کی صحبت نصیب ہوئی ہے، نسبت سے پہلے کتنے بھی ذلیل رہے ہو، اس نسبت نے انہیں معزز اور ممتاز کر دیا ہے زمانے۔ کوئی تاریخ ایسی نہیں ملتی ہے کہ کوئی صالحین کی صحبت میں آیا ہو، بزرگان دین کی صحبت میں بیٹھا ہو، ان کے دامن سے وابستہ ہوا ہو اور ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن گئی ہو۔ نہیں، جب اللہ رب العزت اپنے محبوبوں کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا تو ان کی صحبت میں بیٹھنے والے کو کس طریقے سے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، اگر یہ خیال آتا ہے آپ کے کہ ہم فلاں اللہ والے کے پاس جائیں گے، فلاں خانقاہ میں چلے جائیں گے تو ہمارے اوپر تیر طعن و تشنیع ہوگی، مخالفت کا بازار گرم ہوگا، تو ہونے دیجیے، اس چیز کی پرواہ نہ کریے، کیونکہ اللہ آپ کے بارے میں آپ سے پوچھے گا۔ آپ اپنی اصلاح کی غرض سے کسی کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں، بالکل ہوئیے، اگر وہ اللہ کا کامل بندہ ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، صالح بندہ ہے، کیونکہ ان صالحین کی صحبت سے اللہ رب العزت کے گنہگاروں کی زندگی کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیا کرتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، پوری کتابیں بھری پڑی ہیں، آپ صوفیہ کرام کی زندگی کا مطالعہ تو کر کے دیکھیں، بزرگان دین کی زندگی کو پڑھ کر تو دیکھیں کہ وہ لوگ جو زمانے کے چور ڈاکو اچکے ہوا کرتے تھے، بدماشوں میں شمار کیا جاتا تھا، لیکن انہیں اللہ والوں کی نسبت ملی ہے، ان کا شمار ولیوں میں ہونے لگا ہے۔ غوث اعظم کے بچپنے کا واقعہ کہ جب آپ علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جا رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے آپ کو لوٹا، لیکن وہ تھوڑی دیر کی صحبت ڈاکوؤں کے دل پر ایسا اثر انداز ہوتی ہے کہ ان ڈاکوؤں نے اللہ کے حضور سچی توبہ کی ہے اور وقت کے ولی بنتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں نہ جانے کتنے ایسے بد کردار، بد مذہب، چور اچکے گنہگار آتے تھے، دست حق پر تائب ہوتے تھے، آپ کی صحبت میں بیٹھتے تھے اور وقت کے ولی بنتے ہوئے نظر آتے تھے۔ تاریخ شاہد ہے، تاریخ بتا رہی ہے کہ ان صالحین کی صحبت میں بیٹھنے والا معزز اور ممتاز ہو کر اٹھا ہے، کوئی ذلیل و خوار ہو کر نہیں اٹھا ہے۔ اور یہی اللہ رب العزت کی بھی تعلیم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اگر سچوں کی صحبت، صالحین کی صحبت آپ کی ذلت و رسوائی کا باعث ہوتی، ہرگز اللہ رب العزت اپنی لاریب کتاب میں صالحین کی صحبت کا ذکر نہ کرتا، ہرگز اپنے بندوں کو یہ تعلیم نہ دیتا کہ تم کسی سچے کی صحبت میں جا کر بیٹھ جاؤ، کسی صالح کی صحبت میں جا کر بیٹھ جاؤ، کسی اللہ والے کے نسبت سے کسی اللہ والے سے اپنی نسبت کو قائم کر لو۔ اللہ نے یہ پیغام دے کر اپنے بندوں کو بتا دیا ہے کہ تم دنیا میں ذلیل و رسوا ہو سکتے ہو، لیکن اگر ان صالحین سے تم وابستہ ہو گئے تو ذلت و رسوائی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ لیکن آج ہمیں انہی کی بارگاہ سے دور کیا جا رہا ہے،
हमें ये बताया जाता है कि बुजुर्गान दीन शिर्क व कुफ्र की दावत देते हैं। मेरे अजीजों, मैं कहता हूं कि अगर बुजुर्गान दीन शिर्क व कुफ्र की दावत देते और इस्लाम की दावत नहीं देते हैं तो दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर ईमान और इस्लाम की दावत दी जाती हो। ये खानकाहें ही हैं, ये बुजुर्गान दीन के दर ही हैं कि अंबिया इकराम साहबा इकराम से के बाद जहां से हकीकी तौर पे इस्लाम फैला है, इस्लाम की तबलीग की गई है, दीन मतीन की खिदमत की गई। बुजुर्गान दीन ने अल्लाह को राजी करने के लिए, उनको मनाने के लिए कौन सी मशक्कत और तकलीफ नहीं बर्दाश्त की है। आज मेरे अजीजों, लोगों को तकलीफ इस वजह से होती है कि हम सूफिया के तरीके पर अमल नहीं कर पाते हैं, हम सूफिया के नक्शे कदम पर चल नहीं पाते हैं, उनकी तालीमात के एतबार से हम अमल नहीं कर पाते। इसलिए जब हम ये देखते हैं कि हम अमल नहीं कर पा रहे हैं तो हम दूसरों को भी रोकना शुरू कर देते हैं कि ये गलत तरीके पर लोगों को चला। मेरे अजीजों, बुजुर्गान दीन ये ऐसे ही बुजुर्ग नहीं बन जाते हैं, बल्कि बड़ी मशक्कत के साथ, रियाजत के साथ अल्लाह ताला इसी आयत करीमा में जिसकी मैंने तिलावत की उसके बाद फरमाता है, वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। हम पर 5 वक्त की नमाजें भारी पड़ती हैं जो अल्लाह ने फर्ज की है, लेकिन ये सालिहीन, ये औलियाए कामिलीन, ये सूफियाए इज़ाम वो मुअज़्ज़ज़ हस्ती हैं कि अल्लाह फरमाता है कि इनकी शख्सियत तो ऐसी है कि ये 5 वक्ता नमाज तो अदा ही करते हैं, उसके बाद ये रातों में भी शब्बेदारी करते हैं, मेरे हुजूर खड़े होकर मेरी इबादत करते हैं, और दिन जब निकलता है तो रोजा रहकर मुझे मनाने की कोशिश करते हैं। मेरे अजीजों, रब को राजी करने के लिए मशक्कतें उठानी पड़ती हैं, अपनी ख्वाहिशात को तर्क करना पड़ता है, दुनियादारी को छोड़ना पड़ता है, लेकिन ये तमाम चीजें हमारे दिल से निकलती नहीं हैं। सूफिया इकराम ने इसकी अमली तस्वीर पेश की है। हजरत शेख सरी सक्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं कि शेख जुरजानी रहमतुल्लाह ताला अलैह सब वक्त के कामिलीन में से, बड़े बड़े औलिया किबार में आपका शुमार है। वो फरमाते हैं कि मैंने शेख जुरजानी के पास सत्तू देखा। सत्तू हर कोई जानता होगा, चना पिसा के जो आटा बनाया जाता है उसे सत्तू कहते हैं। हजरत सिर्री सक्ती ने हजरत शेख जुरजानी से सवाल किया, हुजूर हमने आपको कभी रोटी तनावुल करते हुए नहीं देखा, जब भी देखा तो आपके पास सत्तू ही देखा है, आखिर इसकी हिकमत क्या है, आप रोटी क्यों नहीं तनावुल करते? शेख जुरजानी ने जवाब दिया कि सिरी सक्ती, एक दिन मैंने रोटी खाकर देखा था, रोटी खाने में जितना वक्त गुजरा उतनी देर में मैं 70 मरतबा अल्लाह की तस्बीह करता हूं, इसलिए मुझे पसंद ना आया कि मैं रोटी खाने में मसरूफ रहूं और 70 दफा अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीह से गाफिल हो जाऊं, इसलिए मैंने सत्तू को अपनी ग़िज़ा बना ली है। क्योंकि ना इसे बनाने में वक्त लगता है, ना खाने में वक्त लगता है, ना पचाने में वक्त लगता है। ये कुर्बानियां औलिया इकराम पेश करते हैं, अपनी ख्वाहिशात को तर्क करते हैं, तब अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके बारे में कुरान मुक़द्दस में फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशुमार जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी शान बयान की है। इसलिए हमारे लिए भी ज़रूरी यह है कि हम इनके दामन से वाबस्ता हों। हम क्या समझते हैं कि इनकी सोहबत हमें कोई फ़ायदा नहीं देगी, इनके पास बैठना हमें कोई फायदा नहीं देगा, यह हमारी गलत सोच है। हम इनकी सोहबत में बैठ जाएं, अरे सोहबत तो दूर की बात है, कोई शख्स औलिया किराम जैसी हुलिया बना ले, उन जैसा तरीका इख्तियार कर ले तो वो तरीका फायदा देता है। जो शख्स इन सालिहीन की सोहबत में बैठ जाए उसे किस कदर फायदा होगा हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़माने में एक बहरूपिया था। बहरूपिया किसे कहते हैं? जो भेष बदल के लोगों के लिए तमाशे का काम करता है और उससे वो अपनी रोजी रोटी हासिल करता है। वो हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की भी खिदमत में आया और उसने कहा कि मैं बहरूपिया हूँ, मैं करतब दिखाता हूँ। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने उससे कहा कि अगर तू अपने इस कमाल में यानी अपने बहरूपियापन से तू मुझे धोखा दे गया और मैं तुझे पहचान ना सका तो मैं तेरी मुंह मांगी कीमत तुझे दूंगा। वो रोज़ाना अपना भेष बदलता, हजरत औरंगजेब आलमगीर की बारगाह में आता, आप उसे पहचान लेते, चंद रुपया देकर उसे वापस करते कि जा मैंने तुझे पहचान लिया है।
कुछ दिन ये मामूल चलता रहा, वो रोज एक नया भेष बनाता, आपकी बारगाह में आता, आप उसे पहचान लेते और चंद रुपया देकर उसे वापस कर देते। कुछ दिन गुजर गए, वो शख्स नहीं आया, आना बंद कर दिया। जमाना गुजर गया, हजरत औरंगजेब के ज़हन से ये बात भी निकल गई कि किसी बहरूपिये से ऐसी बात हुई थी। एक दिन ऐसा हुआ कि शहर में इस बात का शोहरा हो गया कि शहर के दरवाजे पर एक अल्लाह वाला आकर बैठा हुआ है, एक अल्लाह का कामिल बंदा आकर बैठा हुआ है। उससे जो भी दुआएं की जाए वो दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल कर लेता है। उसके दिल में किसी किस्म की लालच नहीं है। लोग तहफ़ पेश करते हैं, उसमें से वो कुछ भी नहीं लेता, और जो तोहफा उसे पेश किया गया होता है अगर कोई उसमें से आकर उठाए तो लेने वाले को मना भी नहीं करता है। जाहिर सी बात है कि पहले के चाहे वो बादशाह हो या किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले हो, हर एक औलिया इकराम से मोहब्बत करने वाले होते थे। जब हज़रत औरंगज़ेब ने भी सुना तो उन्होंने कहा कि मिलना चाहिए। दिल में ये ख्याल बनाया कि जब अल्लाह का एक वली आया है तो उसकी बारगाह में चलना चाहिए, उससे फैज़ हासिल करना चाहिए। इत्तेफाक से हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर को किसी मुहिम पर जाना था, किसी जंग के लिए आप रवाना हो रहे थे। जब रवाना होने लगे तो दिल में ख्याल आया कि चल के उस अल्लाह वाले से दुआ करवा लेते हैं। सुना है कि उसकी दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रद्द नहीं करता है। चलकर उससे दुआ करवा लेते हैं कि अल्लाह मुझे मेरी मुहिम में कामयाब कर दे, मुझे इस जंग में फतहयाब कर दे। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर अपने लाहो लश्कर के साथ निकले। जब शहर से बाहर होने लगे तो आपने अपने लश्करियों को रोका कि कहा ठहरो, मैं उस अल्लाह वाले से मिल कर आता हूँ, दुआ की दरख्वास्त करवा कर आता हूँ। आप उसकी बारगाह में गए और उसके सामने अदब से बैठ गए और अर्ज़ की कि हुजूर, मैं एक मुहिम के लिए रवाना हो रहा हूँ, एक जंग पे जा रहा हूँ, आप मेरे लिए दुआ फरमाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे फ़तह से हमकिनार कर दे। उस अल्लाह वाले ने दुआ की। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर उठे, वापस आने लगे। अभी चंद कदम ही आगे बढ़े थे कि पीछे से उस शख्स ने आवाज़ दी, बादशाह सलामत। हज़रत औरंगज़ेब पीछे मुड़कर देखते हैं, कहते हैं कि बताएं क्या बात है। उसने कहा कि हुजूर, आज आप धोखा खा गए। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर को बात याद नहीं थी। आपने कहा कि तू किस धोखे की बात कर रहा है। उसने कहा कि हुजूर, आपसे एक बहरूपिये ने वादा किया था, आपने एक बहरूपिये से वादा किया था कि अगर तू मुझे धोखा देने में कामयाब हो गया तो मैं तेरी मुँह मांगी कीमत दूंगा। मैं वही बहरूपिया हूँ और आप मुझे आज पहचान नहीं सके। हज़रत औरंगज़ेब को वो बातें याद आ गईं। उससे कहने लगे कि हाँ, मुझे वो अपनी बात याद आ गई। आज हकीकत में तू मुझे धोखा देने में कामयाब हो गया है। बता तेरी क्या मुराद है, तू क्या चाहता है, मैं तुझे अता कर दूंगा। अगर तू मेरी बादशाहत को भी मांगेगा तो चूंकि मैंने तुझसे वादा किया है, मैं तुझे अपनी बादशाहत भी अता कर दूंगा। जब हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर ने ये बात कही तो वो बंदा कहता है कि बादशाह सलामत, अब मुझे किसी दुनियावी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे आपकी सल्तनत और बादशाहत की ज़रूरत नहीं है। हज़रत औरंगज़ेब ने कहा कि अजीब आदमी हो, इसीलिए बहरूपिया बनते हो कि तुम्हें खाने पीने के लिए कुछ मिल जाए। आज पूरी बादशाहत तुम्हारे कदमों में आ रही है और तुम लेने से इनकार कर रहे हो। मेरे अजीजों, सुनो उस बहरूपिया ने क्या जवाब दिया। वो बहरूपिया कहता है कि बादशाह सलामत, आप सच कह रहे हैं, मैं दुनिया कमाने के लिए बहरूपिया बनता था, मैं दुनिया हासिल करने के लिए अपने भेष बदल के लोगों के पास जाया करता था ताकि लोग मेरे तमाशे को देखकर मुझे पैसा दें। लेकिन जब मैंने अल्लाह वाले का भेष इख्तियार किया, मैंने अल्लाह वाले के तरीके को अपनाया, तो आज मैं देख रहा हूं कि वक्त का बादशाह उठकर मेरे कदमों में आ गया है। आज मुझे इसकी हकीकत समझ में आ गई है कि जब मैंने अल्लाह वालों का सिर्फ भेष इख्तियार किया, वक्त का बादशाह मेरे कदमों में आ गया। अगर मैं सही तौर पर उनकी तालीमात पर अमल कर लूंगा तो पूरी कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे कदमों में डाल देगा। मेरे अजीजों, उस बहरूपिये ने सिर्फ अल्लाह वालों का भेष बनाया था,
अल्लाह ने वक्त के बादशाह को उसके कदमों में डाल दिया। वो कहता है कि अगर भेस बनाने से फ़कत अल्लाह वक्त के बादशाह को मेरे कदमों में डाल दे सकता है, तो अगर मैं हकीकी तौर पे अल्लाह वालों की तालीमात पर अमल करूं, उनके तरीक़े पर अमल करूं, तो ये बादशाह क्या है, कायनात की हर शय को अल्लाह मेरे कदमों में ला कर डाल। इसलिए मेरे अजीज़ों, बार बार ये कहा जाता है कि अल्लाह वालों की सोहबत को हकीर न समझो, अल्लाह वालों की सोहबत को कम न समझो, क्योंकि ये वो सोहबत है, ये वो खजाने हैं जो दुनिया में आपको कहीं मैसर नहीं होंगे। न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, और तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। अज़ीज़ान मोहतरम, ये अल्लाह वाले, ये कामिलीन, ये औलिया सालिहीन, ये सूफिया इकराम, ये कोई आम नहीं है। देखने में तो हमारे और आप जैसे होते हैं, देखने में तो हमारे और आप जैसे होते हैं, बल्कि उनकी हालत हमसे भी ज़ाहिरी एतबार से बदतर होती है। लेकिन सरकार क्या फरमाते हैं कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं, अल्लाह के कुछ महबूब बंदे ऐसे हैं कि बज़ाहिर उनके लिबास फटे होते हैं, बाल बिखरे होते हैं, चेहरे पर गर्द होती है, लेकिन उनके मकाम व मर्तबे का आलम यह है, उनकी मकबूलियत का आलम यह है कि अगर वो कोई बात अल्लाह की कसम खा कर कह दे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी बातों को रद्द नहीं फरमाता है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, गुफ्ते अल्लाह बुअद गर्चे हुल्क़ू में अब्दुल्लाह बुअद। औलिया इकराम के मुंह से जो बात निकलती है, वो जो बात कहते हैं, वो उनकी अपनी बात नहीं होती, दर हकीकत वो कलाम इलाही होता है। फर्क इतना होता है कि बस वो किसी बंदे की जबान से अदा हो रहा होता है। इसीलिए तो सरकार फरमाते हैं कि अगर वो कसम खुदा की खाकर कह दें, कोई बात की कसम उठा लें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी ज़रूर उनकी उस बात को पूरा कर देता है। मेरे अजीज़ों, अगर अपनी इस्लाह चाहते हो, अपनी पाकी चाहते हो, लिबास की पाकी नहीं, अपने कल्ब की पाकी चाहते हो, अपने बातिन की पाकी चाहते हो, अपने आप को साफ करना चाहते हो, तो किसी अल्लाह वाले के दर से वाबस्ता हो जाओ। अल्लाह तुम्हारे जाहिर को भी साफ कर देगा, तुम्हारे बातिन को भी सुथरा फरमाएगा। कहने सुनने में कुछ गलती हो गई हो, कोई ख़ता हो गई हो, रब्बे करीम से दुआ है अपने हबीब के सदक़े तुफ़ैल उसे माफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।